Record. Good afternoon, everyone. This is Dr. Bhupesh once again from Dr. BKM Institutes. Please like, subscribe, and share our channel or contact us for the best OET coaching. Our contact number is +91 76 967 34256. So today we are going to discuss a very small thing about the reading part A, which we have already discussed so many times, but it's for the new YouTube viewers, as our viewers are more than 10,000 now, and that is all organic, and that is because of all the love that you have given us. So we are trying to share this reading part A. What you need to do in the reading part is, sometimes people think that we should leave these 7 questions, but I say never leave these 7 questions. Try to read them. So you have to read them quickly. आपको ये 7 questions quickly पढ़ने हैं. कैसे पढ़ने हैं? Procedures for delivering pain relief. प्रोसीजर टू फॉलो व्हेन स्प्लिंटिंग अ फ्रैक्चर्ड लिम्ब. तो पेन रिलीफ, तो आपको प्रोसीजर को अंडरलाइन करना है, पेन रिलीफ को अंडरलाइन करना है. इन वर्ड्स को कोशिश करनी है याद करने की. प्रोसीजर को याद करना है, फ्रैक्चर लिम्ब को याद करना है, और स्प्लिंटिंग वर्ड, 3 वर्ड्स हैं यहाँ पे याद करने लायक, तो इन तीनों को याद रखना है. देन यू मूव अहेड. व्हाट टू रिकॉर्ड व्हेन असेसिंग अ पेशेंट. व्हाट टू रिकॉर्ड, असेसिंग अ पेशेंट याद रखना है. द टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर. टाइप्स वर्ड को याद रखना है, जहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स देंगे. द प्रैक्टिशनर्स हु एडमिनिस्टर एनाल्जेसिया. सो कौन से प्रैक्टिशनर हैं जो एनाल्जेसिया एडमिनिस्टर करते हैं. व्हाट टू लुक फॉर व्हेन चेकिंग एन इंजरी. हाउ फ्रैक्चर कैन बी कोज्ड. So this is what you have to do in the first 2 minutes. Like, I have taken just 1 minute to read it, and let me see the options now. So when I go to this thing, I see the text part A. It says fractures, buckle or break in the bone. Then it talks about closed or compound fractures. Then it talks about dislocation. Sprain means it talks about the type of fracture. Then simple fractures of limbs, immediate management, clinical assessment, management. So it talks about splint. Here is the word splint and talks about the management. Then if I go to my third paragraph, it talks about drug therapy. Drug therapy, nursing practitioner, registered nurse, intramuscular, intravenous. So these kind of words are given. So third paragraph is about therapy, drug therapy. And there are words like consumer medicine, information can cause this, respiratory depression is rare, and all that stuff, and talks about low dose. So I'm just trying to record the keywords for myself. Then I go to part D, technique for plaster black sab for arm fractures, use same principle for leg fractures. So that is the technique. It talks about technique. So now I have read almost all the, means I have just read in which paragraph what is given. So procedure for delivering pain relief. So procedure for delivering, that should be in C because it is intramuscular, intravenous. So I think that should be the procedure, and the drug therapy is said in this. So it should be C. So first I am doing C. The procedure to follow when splinting a fractured limb. When splinting a fractured limb, so splinting part was given here, splint the site of the fracture. I could see this word. And if there is splinting given in this, then I would be confused. If it is not given in this, then I would call it B. So I would say it B for the moment. But later I can change my answer. So I'm confused between B and D, but for now it is B, it is C. The first one is C and the second one is B. What to record when assessing a patient? So in clinical assessment. So this should also be B as per me, and I could not find anything else. Again, I will not waste my time. In the first 7 questions, I will try to solve them into the term used to different types of fractures. Different types of fractures mean dislocation, sprain. So it should be A. The practitioners who administer analgesia. So analgesia is administered by, that should be given either in this analgesia word, if I could find somewhere in hurry. No, I could not find the practitioner. If I could find here practitioners, nurse practitioner, but analgesia word is given. No, analgesia word is not, but this is analgesia only route of drug morphine. So morphine is kind of analgesia only. So that should be in C as well. But it is a guesswork for now. What to look for when checking an injury? When checking an injury, what to look for? Again, it should come as a part of assessment. But if there is any injury word given, no, assessment word is given. So what to look for should be in C. Of course, there can be some questions, but now I can see another thing. Administer analgesia to the patients in severe pain. If not analgesia, give morphine. If analgesia, to fentanyl. But the person is not given. Person nurse practitioner is given. Again, that answer I don't want to change now. How fractures can be caused? How fractures can be caused? So they can be caused, I don't know, clinically, direct or indirect injury. So it can be A. So okay.
So these I have done as a part of answer. So now you can help me to understand which questions I have done right and which questions. So in exam I will take just 2 minutes, and the questions like the how fracture can be caused I will do it later on, but at least I will try to find 5 questions in first 2 minutes. What it will do, इसका फायदा क्या होगा? एक फायदा तो यह है कि जब मैं यहाँ पे भी मेरे को जो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे मैं उनको छोड़ पाऊंगा। इसका फायदा देखते हैं और क्या फायदा होगा। इसका फायदा ये है, सबसे इस तरीके से माइंड चलाने का फायदा ये है 7 क्वेश्चन में, कि अब देखो व्हाट शुड बी यूज टू एलिवेट अ पेशेंट्स फ्रैक्चर लेग। तो मैं ऐसी चीज को यहाँ पे ढूंढूंगा, क्योंकि यहीं पे दी थी ना मैनेजमेंट, एलिवेट द लिम्ब, अ स्लिंग फॉर द आर्म इंजरीज, अ पिल्लो फॉर द लेग। तो यानी पिल्लो आंसर है मेरा, क्योंकि लेग के लिए पूछा था तो इसलिए मेरा आंसर पिल्लो। व्हाट इज द मैक्सिमम डोज, तो मैक्सिमम डोज पर किलो मैं यहाँ पे ढूंढूंगा। मींस आई मेरा माइंड अब ऐसे काम कर रहा है कि मुझे पता है कौन सी चीज कहाँ पे है। विच पार्ट ऑफ अ लिम्ब में नीड एक्स्ट्रा पैडिंग, तो एक्स्ट्रा पैडिंग या तो इस मैनेजमेंट में होगी या टेक्निक में होगी। तो जहाँ पे मुझे इन दोनों में से पैडिंग वर्ड मिलेगा मैं वहां पे ढूंढूंगा। मीन्स नाउ आई हैव अंडरस्टूड हाउ टू सेव द टाइम, एंड फिर मैं उस वर्ड को ढूंढने, तो दिस विल सेव माई टाइम इन अ वे। What should be used to treat a patient who suffers respiratory depression? Respiratory depression मैंने यहाँ पढ़ा था, नेलोक्सिन। तो देन इट मेक्स माई जॉब इजी, बिकॉज स्किमिंग और स्कैनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट ए में। वैसे मैं अपने आंसर खुद ही देख लेता हूँ। सी, हाँ फर्स्ट का यही किया था, सेकंड का डी किया था, थर्ड का हमने बी किया था, सॉरी, क्योंकि हमने ये कहा था असेसमेंट यहाँ पे दिया, ऑब्वियसली इसका बी किया था, वो गलती से सी बोला था लेकिन मैंने बी किया था ऑब्वियसली। देन द टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, ये ए किया था, फोर्थ का यस ए। देखो कितनी आसानी से होता है, दैट इज द प्रैक्टिशनर्स हु एडमिनिस्टर, ये मैंने कहा था आपको, प्रैक्टिशनर्स यहाँ पे दिए हैं, नर्स प्रैक्टिशनर और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। देन व्हाट टू लुक फॉर व्हेन चेकिंग एन इंजरी, ये दो लास्ट के क्वेश्चन मुझे मुश्किल थे, पर व्हाट टू लुक मैंने इसका भी बी किया था जल्दी में। सो इसका भी बी है। और लास्ट क्वेश्चन ये मैंने कहा था मुझे मिला नहीं है, पर मैंने कहा था इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इंजरी, तो एक भी आंसर गलत नहीं है फर्स्ट 7 में से। सो दैट इज हाउ यू कैन सेव योर टाइम, दिस इज द बेस्ट टेक्निक टू डू पार्ट ए। अगर मैं आपको थोड़ी सी आगे लेके जाऊं, इफ आई टेक यू फर्दर इन दिस पार्ट, तो देखो जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस भी मैं करूंगा तो वो भी मेरे को पता है कहाँ पे है। देखो व्हाट शुड बी यूज टू कवर अ फ्रेशली अप्लाइड प्लास्टर ब्लैक स्लैब, प्लास्टर ब्लैक स्लैब मैंने यहाँ पढ़ा था, तो मुझे पता है यहाँ पे कहीं पे होगा। सो दैट इज हाउ आई सेव माई टाइम। लेकिन इसमें से भी जो क्वेश्चन मुश्किल है उनको एक बार छोड़ना है, कई क्वेश्चन जान के मुश्किल होंगे उनको छोड़ना है। मीन्स सबसे पहले आसान क्वेश्चन करने हैं। सो 20 में से लगभग आपको 14-15 आसान क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन जब आप सिर्फ आसान क्वेश्चन करोगे तो जब आप टाइम क्लॉक की तरफ देखोगे तो वो 14-15 क्वेश्चन सिर्फ 8 to 10 मिनट्स में होंगे। अभी भी आपके पास 5 मिनट पड़े होंगे और सिर्फ 5 क्वेश्चंस रह गए होंगे, फिर आपको मुश्किल नहीं लगेगा। और वैसे भी उन क्वेश्चंस को आप एक बार देख सकते हो। जैसे अब मैं कोई भी रैंडम क्वेश्चन उठाता हूँ, दिस प्लास्टर बैक स्लैब तो वो पता ही लग गया लास्ट में। मेक श्योर इफ द पेशेंट इज नॉट वियरिंग एनी ऑन द डैश पार्ट ऑफ द प्लास्टर, ये भी डी में दिया होगा, ये भी डी में दिया होगा। अब देखो मेरे को ये पता लग रहा है ना अपने आप ही, अपर लिम्ब फ्रैक्चर शुड बी एलिवेटेड बाय अ मींस ऑफ, अपर लिम्ब फ्रैक्चर्स तो ये तो वही था, आर्म फ्रैक्चर शुड बी एलिवेटेड बाय मींस ऑफ, तो ये जान के घुमा के दे रखा है, बाय मींस ऑफ स्लिंग आना चाहिए, वही एलिवेट द लिम्स। तो ये शायद वोकेबलरी चेंज की हुई है, इसका आंसर भी स्लिंग ही होना चाहिए। एक मिनट देखो, हाँ स्लिंग। ये अब देखो यहाँ पे वर्ड शफल किए, ये पेपर में आपके लिए, अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है तो ढूंढने में मुश्किल होगी, लेकिन अगर आप क्वेश्चन अपर लिंक फ्रैक्चर मींस आर्म्स, आर्म फ्रैक्चर्स शुड बी एलिवेटेड बाय, तो ये सिर्फ पैसिव वॉइस की है। देखो आर्म फ्रैक्चर शुड बी एलिवेटेड बाय, आर्म इंजरीज शुड बी एलिवेटेड बाय अ स्लिंग। तो दैट इज, अब आप यहाँ पे आप अस्लिंग लिखो तो बेटर है, अगर स्लिंग लिखा है तो भी कोई बात नहीं, दोनों में दोनों के मार्क्स आपको मिलेंगे। सो दिस इज हाउ यू शुड डू पार्ट ए। और एक बार पार्ट ए का टेंडम बन गया, पार्ट बी और सी भी इसी टेंडम से करना है। जो आसानी से मिलेगा उसे फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है, जो मुश्किल से मिल रहा है उसे अटेम्प्ट नहीं करना। इन रीडिंग मैनेजमेंट इज एवरीथिंग। एंड दिस इज डॉक्टर भूपेश टॉकिंग this thing, this theory from last is from an experience of 11 years which I have been teaching OET, but this is what I have been learning since my childhood। जो मैं अपने बचपन से सीख रहा हूँ कि हमेशा रीडिंग इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। रीडिंग में कोई होशियार नालायक नहीं होता, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट में। अगर आप कहो सर उसकी तो वोकेबलरी बहुत अच्छी है, वोकेबलरी बेस्ड सिर्फ 2-3 क्वेश्चन होते हैं। तो जो टॉपर है और हम में ज्यादा से ज्यादा 2-3 क्वेश्चंस का फर्क होता है। मेन फर्क है हाउ टू होल्ड द नर्व्स, हाउ टू गो टू इजी क्वेश्चंस। सो बस जब आप इजी क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करोगे यू विल बी ऑल गुड टू गो। सो प्लीज follow this technique and you definitely will get a very good result in OET reading. This is Dr. Bhupesh once again from Dr. BKM Institute. Thank you.